Hello students, hope you all are doing well. My name is Mauli and today we are going to learn our Unit 1's Chapter 1 which names Learning Together by Kamla Nair. So our first chapter of Unit 1 is The Day the River Spoke. जिस दिन नदी ने कुछ बोला. अब क्या बोला वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. Before starting the chapter, we have some exercise. Let's discuss that. First, you have to close your eyes for a minute and listen to the voice which are there around you. आपको आपके आसपास की आवाज़ें सुननी है. Okay, so come on, close your eyes for a minute and try to listen to the voice. Okay, are they trying to tell you something? आपको जो आवाज़ें आ रही है वो आपको कुछ कहना चाहती है? If yes, then what? So yes, the voices are trying to tell us something. For example, if the voices are of birds, then birds are trying to say us that be in the free environment. They are trying us to teach the lesson of freedom. Second, if there is a voice of wind, for example from the cracks of the doors or the windows, आपको हवा की आवाज़ आ रही है, then the wind is trying to say to you to keep moving constantly, right? So yes. Second question is, do you think the things around you also listen to you all day long? आपके आसपास जो चीज़ें हैं, natural elements और anything which you have answered in the first question, वो आपको constantly सुन रही है ऐसा आपको लग रहा है? I guess it's a subjective answer and according to me that yes, they are trying to listen to us because birds है, greenery है, natural elements है, वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं. तो हमें ऐसा लगता है that they are constantly with us and listening to us. And if your answer is no, then you can reason it out as that no, they are not living beings, so they cannot listen to us. Okay. Now, second exercise is, in this second point, they have introduced to us our first character, जिसका नाम है जानवी. So Janvi was very young, who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village. Now, our first character is Janvi. Okay. So Janvi was very bright in the sense that she is very intelligent and very curious child. Okay. Bright का meaning जो उसके पेरेंट्स के साथ और 3 ब्रदर्स के साथ रहती थी कोस्टल विलेज में. What is the meaning of coastal? Coast means the area near the sea और villages जो समुद्र तट के किनारे जो गांव बसे होते हैं उनको coastal village बोलते हैं. Okay? Her parents worked on the farm, so their parents were farmer. She had a dream. उसका एक सपना था. What could that dream be? हमने अभी तक chapter discuss नहीं किया है, so you don't know what that dream be, but you have to guess. Okay? So let's guess that Janvi's dream could be to be a successful woman and try to develop her village. Okay? How could she make her dream come true? वो कैसे ये सपने को पूरा कर सकती थी? So she could make her dream come true by doing hard work towards her dream and being educated to herself and other villagers. What is your dream? This is subjective answer. आपका ड्रीम क्या है? And what can you do to make your dream come true? आपको आपकी ड्रीम पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हो? So there is one quote by Dr. Abdul Kalam. He says that the dreams are not that comes in the sleep. जो नींद में आते हैं वो ड्रीम नहीं है, but the dreams are one that can't let you sleep. आपके सपने ऐसे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करते हो. Yes, so this is the picture of Janvi which we already discussed. Our main character is Janvi. You have to carefully look at the picture. Okay? क्या दिख रहा है आपको ये इमेज में? First of all, Janvi of course सैड लग रही है Janvi. Then there is Kingfisher. एक बर्ड है वो डाइव कर रहा है. कहाँ पे डाइव कर रहा है? रिवर. Kingfisher, रिवर. फिर हमें दिख रहा है बाम्बू ट्रीज. पैरट, लिजार्ड, ग्रीन लिजार्ड.
ओके, सो दिस आर द एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर. हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएंगे. लिजार्ड, रिवर, किंगफिशर, बैम्बू ट्रीज एंड पैरट. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, here our chapter starts. So first paragraph says that a big bright tear splashed down her nose. Her means Janvi. Janvi रो रही थी. And another, a kingfisher swept down. This line is very important. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. मतलब कि जो किंगफिशर था, इट्स विंग्स आर ब्लू. ओके, ब्लू कलर के उसके विंग्स थे. एंड किंगफिशर डाइव कर रहा था इन द रिवर विच लुक्स एज इफ के एरो, एक तीर जा रहा हो अंदर, नदी के अंदर. सो किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, अंदर जाना, इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. सनलाइट में उसके जो ब्लू कलर के विंग्स थे वो कैसे दिख रहे थे? एज इफ वो एरो है. फिर हमने सेकेंड चीज क्या देखी थी? ग्रीन कलर की लिजार्ड थी विच वॉज स्लिदर्ड. नाउ स्लिदर्ड मीन्स मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड. स्लिदर्ड जैसे कि एनिमल्स जो पेट के बल रेंगते हैं जमीन पे, उसको स्लिदर्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया. ओके, बास्क इन द सन, धूप सेक रही थी लिजार्ड. ओके, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. व्हाट्स द मैटर? मर्मरिंग वॉइस मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. एक आवाज़ आई जो स्लीपी थी, डेज्ड हुई हुई, थकी हुई आवाज़ थी. उसने बोला कि क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन. स्टार्टल्ड का मतलब होता है एकदम से सरप्राइज होना, क्योंकि उसको पता था कि आसपास तो वो अकेली है, लिजार्ड बोल नहीं सकती. Kingfisher was up in the thickest of bamboo eating fish it had caught. Kingfisher था वो बाम्बू के ऊपर जाके, thickest का मतलब होता है कि वो bushes होते हैं, बाम्बू ट्री के ऊपर जो घने पत्तियां थी वहाँ पे जाके वो फिश खा रहा था. Couldn't be parrot because parrot का आवाज़ कैसा होता है? श्रिक्ड होता है, एकदम तीक्ष्ण आवाज़ होता है, वो कान में लगता है. और ये जो आवाज़ आई थी वो स्लीपी वॉइस थी, तो पैरट भी नहीं हो सकता. She looked around. There wasn't soul in sight. Soul का मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था. साइट मतलब नजर आना. कोई ह्यूमन बीइंग नजर नहीं आ रहा था. She was rather scared and wanted to run away. Of course, आप एक सुमसाम जगह पे होंगे जहाँ पे कोई आदमी नहीं है और कोई आपको बुला रहा है, तो you will be very scared. Okay? So exactly that happened. You should cry, you shouldn't cry, the voice went on. And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. So वो जो आवाज़ आ रही थी वो कह रही थी आपको रोना नहीं चाहिए, shouldn't cry. और आपको डरना भी नहीं चाहिए, you shouldn't be scared का मतलब होता है डरना. आप यहाँ पे रोज़ आते हो, well, almost every day. हाँ, रोज़ ही आते हो आप यहाँ पे. Okay, I hope this much is clear. And these are the hard words. Thickest का मतलब है dense bushes. श्रिक्ड का मतलब है हाई पिच्ड साउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तीक्ष्ण आवाज़. ओके, सो वो जो आवाज़ आ रही थी उसने बोला कि आप तो यहाँ रोज़ आते हो. ओके, ऑलमोस्ट रोज़. शी वॉज पजल्ड. पजल कैसी होती है? बिखरी हुई. वैसे ही जो जानवी थी उसका थॉट्स बिखरे हुए थे, वो कंफ्यूज थी. उसको ऐसा लग रहा था जैसे रिवर बुला रही है, बट इट कुडंट बी द रिवर. रिवर कैसे बोल सकती है? रिवर नहीं हो सकती. रिवर ने बोला, लेकिन एक्चुअली दैट वाज रिवर. इट्स अ फिक्शन स्टोरी जिसमें कुछ भी हो सकता है. ओके, सो रिवर बोल रही थी कि आई हैव टेल मी, आपको क्या हुआ है? मुझे जल्दी है, मुझे सी के पास पहुंचना है. टू रिच टू द सी. रिवर्स कहाँ पे जाके मिलती है? रिवर, नदियाँ किसको मिलती है? समुद्र को मिलती है. तो ये बता रहे हैं कि नदी बोल रही है आप बताओ मुझे कि क्या हुआ है, मुझे समुद्र के पास जाना है, मुझे जल्दी है. दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल. आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटान एंड मीना. नाउ जानवी पूछ रही है कि मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकती, मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे. जब मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्यों मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, इटान एंड मीना के जैसा. Now, Itan is the Malayalam word for
एल्डर ब्रदर, ओके, जो बड़ा भाई होता है उसके लिए उसको मलयालम में एटन बोलते हैं, एटन, ओके। एंड मदर हैड रिप्लाइड कि आप बहुत छोटे बेबी हो, मे बी लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, ओके, दिस इज LATER लेटर एंड नॉट LETTER लेटर, ओके। बट व्हेन शी वाज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, जब वो 5 साल की थी तब उसका छोटा भाई बॉर्न हुआ था, ओके। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, तब उनकी मम्मा ने बोला था अब नेक्स्ट ईयर जाना, क्यों? क्योंकि जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड्स, मुझे खेत में जाना होता है काम करने के लिए। आप अपने भाई को माइंड मतलब संभालो, माइंड का मतलब है टू टेक केयर ऑफ, ओके। आप अपने भाई को संभालो। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो तब वो 5 साल की थी, अब वो 10 साल की हो चुकी है। एंड माइंडिंग लिटिल अपू, और अब वो किसका ध्यान रख रही है? माइंडिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ। अब वो किसका ध्यान रख रही है? उसके छोटे भाई का, अपू, उसका दूसरा छोटा भाई है अपू, उसका। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है, ओके। सो दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब। अब वो उनका जो सबसे छोटा भाई था अपू, उसका ध्यान रख रही थी, ओके। सो क्लियरली 3 एल्डर ब्रदर्स थे, ओके। उसमें से 3 का हमें पता चल गया, एटन, अपू एंड रामू, ओके, जिसमें से अपू सबसे छोटा था। सो दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब, वो जैसे कि रोने ही लगी बोलते बोलते, उसका सेंटेंस भी अधूरा है। उनको मैं नहीं चाहिए, दे ओनली, फिर वो रोने लगी। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटिन एंड मीना। जानवी बोल रही है कि मुझे स्कूल जाना है, पर मैं अभी ओल्ड हूँ। ओल्ड डजंट मीन के एज में ओल्ड, बट द एज हैड वेंट, जो उसकी एज थी एडमिशन लेने की वो चली गई है, ऐसे ओल्ड। और वो लोग मुझे नहीं जाने दे रहे स्कूल में, बट मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है एटिन और एटिन और मीना के जैसे। सो जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटान, एटान मीन्स एल्डर ब्रदर, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पर उसका जो रियल नाम था वो था गोपी। सो कौन कौन से कैरेक्टर्स आए? जानवी, देन गोपी, रामू और अपू, ओके। दे आर सिबलिंग्स, और मीना मे बी फ्रेंड, क्योंकि उसका मेंशन नहीं किया हुआ है क्लियरली, ओके। सो दिस आर द कैरेक्टर्स। आई वॉन्ट टू नो, अब जानवी को क्या सीखना था वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। स्पाइडर जो येलो पीले कलर के फूल होते हैं, उसमें स्पाइडर्स पीले कलर के ही क्यों होते हैं? वाई बैम्बू ट्रीज रसल, जब पेड़ की जो पत्तियां होती है वो एक दूसरे के साथ टकराती है और जो आवाज आती है उसको रसल कहते हैं। हियर इज द मीनिंग, लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम द हिल्स, मून क्यों हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही आता है, नेवर द अदर वे, और कहीं से भी नहीं। द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई? नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज कि बेबी फिश फ्रॉग कैसे बनती है, बट इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस आई गेस, जिसमें जो टॉड्स होते हैं, मतलब के मेंढक के बच्चे, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से फ्रॉग बनते हैं। एंड व्हेन दे वर टॉड्स, उनकी टेल होती है तो वो फिश जैसे दिखते हैं, ओके। दैट इज वाई बेबी फिश उसको लगता है, क्योंकि उसने तो पढ़ा नहीं है। सो बेबी फिश फ्रॉग्स कैसे बनते हैं वो सब मुझे जानना है। अब रिवर ने क्या बोला? स्टॉप, यू मेक मी ब्रेथलेस, मुझे बोलने तो दो, मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, आई एम ब्रेथलेस। सो मेनी वाइज। नाउ वाइज मतलब क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं आपको कह सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरीली, कॉन्स्पिरेटरीली मीन्स सीक्रेटली, आपको ना किसी को नहीं बताना है, मैं आपको ही बता रही हूँ। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, मून कहाँ जाता है? समुद्र के पास जाता है। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं भी वो सेम रास्ते जाती हूँ।
रिवर मेट्स सी और मून भी सी को मिलता है. द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी. माउंटेन्स के पीछे से वो आता है और समुद्र को मिलता है. अब जितना हमने डिस्कस किया उसके बेस पे हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं. लेट्स सॉल्व दिस. व्हाट वाज जानवी's ड्रीम? वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर एंड व्हाई? ओके, 3 क्वेश्चंस है. जानवी का ड्रीम क्या था? टू गो टू द स्कूल. वो इम्पोर्टेंट था? ऑफ कोर्स yes, it was important to her. Janvi's dream was to go to the school. Yes, it was important to her. And why? Because she wants to satisfy her curiosity. उसको जानना था. She wants to learn something new constantly. Okay? So, hope this is clear. Do you think the river helped her in fulfilling her dreams? How? क्या आपको लगता है कि नदी ने जानवी का जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए उसको मदद की? कैसे? हाँ, yes. The river, I think the river can help her in fulfilling her dream. How? अब रिवर तो चल के उसको स्कूल में छोड़ नहीं सकती, but of course she can motivate Janvi. She can help her to get out from her comfort zone. This is how maybe river can help Janvi. Okay, so here our part 1 ends and our part 2 starts. Okay, even little Ramu goes to school. जानवी ने कहा अब तो वो छोटा रामू है सबसे, वो भी अब तो स्कूल जाता है. पीटी, द स्कूल इज इन बाय द सी. ये सेंटेंस है ना वो रिवर ने बोला है. सेड द रिवर. उसने क्या कहा? पीटी मतलब दया. उसने बोला कि आई विश, मुझे दया आ रही है, काश वो स्कूल वो सी के नज़दीक होती तो मैं ही तुम्हें ले जाती. देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग. अलॉन्ग मतलब साथ में. ओके, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, पर मैं नहीं कर सकती वो. यू वुड गेट योर फीट वेट. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारे पाँव है वो गीले हो जाएंगे. वेट का ऑपोजिट क्या होता है? ड्राई. ओके, एंड दैट कुड नेवर डू. और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी. आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू. मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ तुम कर सकते हो. यहाँ पे अफ्रेड मतलब डरना नहीं, यहाँ पे अफ्रेड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ आप कर सकते हो उसके लिए. कैन आई डू समथिंग? जानवी ने बोला कि अब दिस पैराग्राफ शोज दैट हाउ मच अंडर कॉन्फिडेंट जानवी वॉज, बिकॉज वो कोई बार घर से बाहर ही नहीं निकली थी. ओके, कैन आई डू समथिंग? क्या मैं कुछ कर भी सकती हूँ? उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था. वेल इट्स अप टू यू. रिवर ने कहा यह आपके ऊपर डिपेंड है. रिवर को क्या लगता है? दिस इज द मेन लाइन. इट सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. गर्ल्स भी वो सब कर सकती है जो बॉयज कर सकते हैं. वो बॉयज के जैसे फास्ट तैर भी सकती है. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. आप एक काम करो, आप जाओ स्कूल के बाहर बैठो. एक सुबह में आप जाओ और स्कूल के बाहर बैठो तो शायद से ऐसा हो सकता है कि टीचर आपको अंदर आने दे, पढ़ने दे. ट्राई करो आप. गास्प्ड जानवी. गास्प्ड का मतलब होता है जब आप कंफर्ट जोन में नहीं होते और आपको कुछ करना होता है तब जो एक्सप्रेशन आता है, शॉकिंग एक्सप्रेशन ऑफ डिनायल. ओके, आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट. मतलब बाहर निकाल देना, डरा देना. मुझे उनसे डर लगता है और वो मुझे बाहर निकाल देंगे. वो मुझे डराएंगे और वो मुझे बाहर निकाल देंगे. द रिवर लाफ्ड. अब यहाँ पे नदी हंसी. यू स्केर्ड? आप डर रहे हो? द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड. नाउ यहाँ पे वो क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है जानवी को. आप डर रहे हो, आप ग्रीन लिजार्ड से तो नहीं डरे. आप जो बाम्बू के जो क्लम्प का मीनिंग भी वही होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, सो बुशेस. ओके, आप जो स्नेक था बाम्बू ट्री में उससे नहीं डरे. रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, जानवी स्टार्टलेड. ये एक्सप्रेशन याद रखना. और द बिग ट्रेन्स रेटलिंग पास्ट दैट ब्रिज. रेटलिंग मतलब
कोई भारी जो व्हीकल होता है वो पास होता है और जो आवाज़ आती है वो, सो ब्रिज पर से ट्रेन जा रही है, वो आवाज़ से भी आप नहीं डरे। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रीफर शिप्स। रिवर ने बोला मुझे तो शिप्स पसंद है, ट्रेन में बहुत आवाज़ आती है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम। मैंने ये याद रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जानवी को पता ही नहीं था कि जो बैम्बू ट्रीज है उस पर स्नेक है। ओके, व्हाट आर शिप्स? अब रिवर ने बोला कि मुझे तो सबसे ज़्यादा शिप्स पसंद है, ट्रेन्स नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत आवाज़ करती है। जानवी को शिप्स क्या था वो भी नहीं पता था। So river is saying that big boats, so big that they can have hundred of people, and they sail along the sea with lights that shine all the night. वो उसको बता रही है रिवर कि शिप क्या है, तो वो एक बड़ा सा जहाज जैसा है जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं, और वो सेल मतलब तैरना, वो तैरती है समुद्र में, और द सी विथ लाइट, उसमें लाइट्स होती है, वो पूरी रात चालू होती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, उसकी जैसे सांसें ही अटक गई। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आ सकती है? शिप्स, ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट शिप्स। शिप्स यहाँ आ सकती है? आई एम अफ्रेड नॉट, टू लार्ज, यू नो, बहुत बड़ी होती है, वो यहाँ नहीं आ सकती। चंदुत्स कैटामैरन, कैटामैरन इज ऑल्सो टाइप ऑफ बोट ओनली बट स्मॉलर इन साइज दैट कैन सेल इन द रिवर इजिली, इज गुड इनफ फॉर मी। मेरे लिए कैटामैरन ही ठीक है जो चंदू चलाता है। सो चंदू कैन टेक यू टू अ शिप समडे, अगर आपको देखनी है शिप तो चंदू आपको लेके जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। वेल्ड का मतलब होता है जैसे कि कंप्लेन करना, कि वो मुझे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। सो जानवी के मन में ये साइकोलॉजिकली घुस गया था कि नो वन विल अलाउ हर टू डू एनीथिंग और टू लेट हर गो एनीवेयर। ओके, दिस प्रूव्स दैट। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। रिवर ने बोला आप जस्ट डू वन स्टेप एट अ टाइम, आप पहले स्कूल जाओ, रिमेंबर इट्स अप टू यू। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके ऊपर है, सो यू हैव टू डू इट। ओके, सो जानवी गैदर्ड करेज, फाइनली उसने हिम्मत जुटाई। नेक्स्ट डे वो स्कूल गई, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, एंड स्टूड बाय द डोर लिसन while the teacher read out the lesson. वो वहाँ पे खड़ी थी और उसने ना वो लेसन्स पढ़े, लेसन्स सुने जो टीचर पढ़ रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, जो किंग है अशोका, जब वो प्रिंस थे उनकी स्टोरी पढ़ रहे थे, हु बिकम अ ग्रेट किंग, और बाद में वो क्या बने, बहुत ही अच्छे ग्रेट रूलर किंग बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। जो अप्पू था वो ऑफकोर्स उसको ना अप्पू का ध्यान रखना था, तो वो सभी जगह अप्पू को लेके जाती थी। कैसे मैं दिखाती हूँ, ऐसे, सो लाइक दिस, उसके ऊपर अप्पू सो गया था ऑलमोस्ट। ओके, यस, शी क्रैप्ड नियर एंड नियरर टिल इन द बैक रो। वो धीरे धीरे करके करके क्लास में घुस के लास्ट रो में बैठ गई। स्क्वाटिंग विद द अदर ऑन द अर्दन फ्लोर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि द फ्लोर्स आर ऑफ अर्थन, मतलब कि मिट्टी का, जो नीचे जमीन पे बैठे हुए थे। स्क्वाटिंग मीन्स क्या, नीचे बैठना। ओके, लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। जो छोटा अप्पू था उसने कोई आवाज नहीं की। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम? स्प्रिंग इज द सीजन, नेम ऑफ द सीजन ऑल्सो, और स्प्रिंग मीन्स ऑल्सो आना। टीचर ने पूछा आप कहाँ से आई? वॉट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? एंड यू आर न्यू इन माई क्लास। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या मेरे क्लास में नए हो? ये सब जनरल क्वेश्चंस टीचर ने पूछे। और एज दूसरे स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि ये कौन है। एज यू ऑल नो, शी इज गोपी's सिस्टर। ये गोपी की सिस्टर है। गोपी तो अगले क्लास में है, नेक्स्ट क्लास में बैठा है। इट्स जानवी, दूसरे को तो उसका नाम भी पता था। सो यू आर गोपी's लिटिल सिस्टर, क्या आप गोपी की छोटी बहन हो? नाइस लेड, लेड का मतलब क्या होता है, बॉय, और वी कैन से स्टूडेंट हियर, अच्छा बच्चा है वो, ऐसा टीचर ने बोला। इफ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर, डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। अगर आपको सच्ची में स्कूल आना है, पढ़ना है, तो मैं आपके पापा से बात करूंगा और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ देंगे। ओके, so this is the
picture or this is the scenario of the classroom. इसमें बेंचेस दिखाई है बट इन द टेक्स्ट इट इज मेंशन कि वो लोग ज़मीन पे ही बैठे हुए थे. सो जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप टू द स्टेयर टू देयर गेट नेक्स्ट इवनिंग. अगले ही दिन टीचर उनके देयर गेट मतलब देयर हाउस डोर. ओके, वो तब क्या कर रही थी, लाइटनिंग द लैम्प. उसको दिखा कि उसके फादर है वो चीक्स स्क्रैच कर रहे हैं और उसके जो टीचर है वो नॉड कर रहे हैं, मतलब हाँ या ना, नॉड कैन बी बोथ. ओके, तो उसको ऐसा लगा कि क्या चीज़ें हो रही होगी, क्या उस बातें हो रही होगी. उतने में ही उनकी मदर आई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग कहा उनको. लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू द स्कूल. जब आप स्कूल जाओगे तब मैं आपको बहुत मिस करूँगी. उनकी मम्मा को भी पता था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग. सो उन्होंने क्या बोला, गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट. ओके, लड़कियों को उनको जितना पसंद हो, जितना चाहे उतना पढ़ना चाहिए. क्योंकि व्हेन आई वॉज योर एज, तब जब मैं आपकी एज की थी तब आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल. मुझे भी स्कूल जाना था पर मेरी दादी ने मुझे मना किया. आई एम ग्लैड द टीचर केम टू यू टू टॉक टू योर फादर. मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपके टीचर की कि वो आए और आपके पापा से बात की. बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि आप स्कूल जाओ और पढ़ो. मुझे पढ़ना था पर मेरी दादी ने मुझे मना किया. ओके, सो हियर इट क्लियरली सीज कि कितनी हैप्पी है जानवी. सो एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो आई विल. ये उसके ड्रीम है. ओके, वो क्या कह रही है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी टीचर बनूंगी. घर घर जाकर, विलेज के हर एक घर में जाके मैं जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको स्कूल में लाऊंगी और उनको पढ़ाऊंगी जो जो मैंने पढ़ा है. एंड शी वेंट डाउन द पाथ. और लास्ट में वो कहाँ जाती है, नदी से मिलने के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन. नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कूल चालू हो उससे पहले वो जाती है टू मीट द रिवर. और वो क्या बोलती है, आई डिड इट, मैंने फाइनली कर दिया. आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी पर मैंने किया. एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम. मैं क्या सीखूंगी, मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं सम्स करना सीखूंगी और फाइनली मैं सीखूंगी कि कैसे जो लिटिल फिश होती है जो राइस फील्ड के पॉन्ड्स में होती है वो फ्रॉग बनती है. सो फाइनली नाउ शी विल लर्न द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल. उसका धीरा धीरा वॉइस उसने सुना नदी का. और क्या बोला नदी ने लास्ट, कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर से आना. आई विल लेट यू ऑल अबाउट द शिप दैट सेल द सी. लेट यू ऑल अबाउट मतलब आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानकारी दूंगी कि कैसे जो शिप्स है वो सेल मतलब तैरना, कैसे वो शिप्स है वो समुद्र में तैरती है. ओके, so here our chapter ends and this was written by Kamala Nair. She wrote the whole book on it, The Day the River Spoke. ये पूरी एक नॉवल या बुक है और ये जो एक्सट्रैक्ट मतलब कि एक पार्ट अडॉप्टेड मतलब लिया हुआ है ये बुक में से. So yes, hope this is clear. Here our chapter ends.